Standard 9 English. My dear children, in this video, we are going to study the second part of the lesson necklace. In the last video of English, we have studied the first part of necklace, in which we have studied about Madame Loisier and her husband and how they lost the necklace they have borrowed from Madame Forestier. So let's continue. What happens to that necklace and Madame Loisier in this video? The necklace, part 2. They looked in the folds of her dress, in the folds of her cloak, in her pockets, everywhere, but they could not find it. They looked in the fold of her dress. वो लेडी का कौन है? मैडम लॉयसेल. मैडम लॉयसेल का कपड़े के ड्रेस के फोल्डिंग कहीं अटक गया तो नहीं. एवरी फोल्डिंग में देखा. What they were searching about? They were searching the necklace, the lost necklace. In the folds of a cloak, cloak means it's a kind of dress only, the long dress. In her pockets, pockets में check किया, everywhere, सब जगह, but they could not find it. उन लोग वो ढूंढ नहीं पाए. Are you sure you still had it on when you left the hall? He asked. Mr. Loisel asked. Are you sure? तुम्हें पक्का है? You still had it on when you left the hall? जब हॉल से निकली तभी भी तुम्हारे गले में था, तुम्हारे पास था. Yes, I touched it in the hall at the ministry. Yes, I touched it. हाँ, मैं उसको टच किया था. In the hall at the ministry. Ministry के हॉल में मैं उसको टच करके फील किया था. Yes, it was there. But if you had lost it in the street, we would have heard it fall. अगर लेकिन if you had lost it in the street, अगर तुम वो रास्ते में खो गए होते, रास्ते में अगर वो गिर गया होता, we would have heard it fall. हम उसे गिरते हुए सुनाई देते थे हमें. हम उसको उसका गिरने का आवाज़ सुनता था. It must be in the cab. हो सकता है. It must be in the cab. ज़रूर वो कैब के अंदर. Cab means the taxi. टैक्सी में गिर गया होगा. Yes, that's probably it. हाँ ज़रूर शायद हो सकता है. Probably means शायद. That probably it. Did you take his number? क्या वो टैक्सी वाले का नंबर या टैक्सी का नंबर आपने लिया था? No. हस्बैंड ने कहा नहीं. They stared at each other, stunned. Stared means देखना. एक दूसरे को घूरने लगा या एक दूसरे को देखे. Stunned. Stunned means shocked. At last, Loisel put his cloth on again. At last, आखिर में Loisel, Mr. Loisel, put his clothes on. वापस अपने कपड़े पहने. Again. I'm going back, he said. मैं वापस जा रहा हूँ. Over the whole route we walked and see if we can find it. Over the whole route we walked. जिस रास्ते से हम चल के आए पूरे रास्ते में देखता हूँ. And see if we can find it. If I can find it. देखता हूँ अगर find कर पाए तो. He left. वो चले गए. She remained in her ball dress at night. Ball dress means the dancing dress. The dress which she had worn all through the party. She did not change the dress. वो dress change भी नहीं की. Because she was totally upset. The whole night she kept that she was in the same dress. Her mind blank. मन blank हो गए. Her husband returned at about 7 o'clock. Somewhat around 4 o'clock he left for searching for the necklace. And now he came back at 7 in the morning. He had found nothing. वो कुछ नहीं ढूंढ पाया. He went to the police, to the newspapers to offer a reward. To the cab companies. Everywhere the tiniest glimmer
of hope led him. He went to the police. वो पुलिस के पास गया. To the newspapers. न्यूज़पेपर वाले के पास गया. To offer a reward. एक reward that means a तोहफा या एक क्या बोलते हैं कुछ अगर खो जाते हैं तो हम क्या करते हैं तोहफा ऑफर करते हैं कुछ रिवॉर्ड ऑफर करते हैं कि इतना पैसा देंगे जिनको भी मिला वो लौटा दे. टू द कैब कंपनी वाले के पास गए. एवरीवेयर हर जगह वो गए. द टाइनिएस्ट ग्लिमर ऑफ होप लेड हिम. उसके अंदर एक टाइनिएस्ट मीन्स छोटे से छोटा एकदम छोटा ग्लिमर मीन्स उम्मीद का किरण या किरण एकदम छोटे से छोटे ग्लिमर ऑफ होप उम्मीद का थोड़ा सा किरण उसके अंदर बचा हुआ था. सो ही वेंट एवरीवेयर. शी वेटेड ऑल डे इन डिस्पेयर एट दिस फ्राइटफुल डिसास्टर. फ्राइटफुल ये डर क्रिएट करने वाला ये डिसास्टर मतलब ये नुकसान के बारे में सोचकर शी वॉज सिटिंग ऑल डे दिन भर बैठे रहती इन डिस्पेयर निराशा. डिस्पेयर मीन्स डिसअपॉइंटमेंट निराशा. Loisel returned in the evening a hollow, pale figure. Every morning he used to go out in search of the necklace and she used to wait for his returning. So evening he returned, शाम को आ जाते हैं. A hollow, pale figure, पूरे खाली खाली दिमाग से या खाली खाली नज़रों से या खाली हाथ से. Pale figure means पूरे रंग उड़े हुए जैसा एकदम weak. He had found nothing. वो कुछ नहीं ढूंढ पाया means he could not find the necklace. You must write to your friend. At last he told, you must write to your friend. तुम तुम्हारे friend को लिखना चाहिए. Tell her you have broken the clasp of her necklace. उससे बोलो लिखे कि you had broken the clasp of her necklace. तुमने उनका necklace का clasp means hook तोड़ दिया है गलती से टूट गया. एंड यू आर हैविंग इट मेंडेड और तुमने वो रिपेयर करने के लिए दिया हुआ है. मेंडिंग मीन्स रिपेयरिंग. इट विल गिव अस टाइम टू लुक सम मोर. ऐसा बोलने पर वी विल गेट सम मोर टाइम टू सर्च फॉर इट. अगर ऐसा बोलेंगे तो शी विल बी वेटिंग वो इंतज़ार करेगी. एंड वी विल गेट मोर टाइम टू सर्च इट. हमको ज़्यादा वक्त मिलेगा उसे ढूंढने. शी रोट एज यू डिक्टेटेड. जैसे वो डिक्टेट करके दिया जैसे वो बोलकर दिया वैसा वो लिखी. एट द एंड ऑफ 1 week दे हैड लॉस्ट ऑल होप. एक हफ्ते के बाद एट द एंड ऑफ 1 week दे हैड लॉस्ट ऑल होप. सभी उम्मीदें खो गए उनके. एंड लॉयसल who suddenly looked aged declared, we must consider how to replace the jewel. और Mr. Loisel who suddenly looked aged and declared, वो जल्दी से मतलब सडनली इतने दिनों में विद इन 1 week he became he was seemed to be old. बहुत ही ओल्ड एज्ड लगने लगा जो क्योंकि टेंशन के मारे. एंड ही डिक्लेयर्ड और वो बता दिया डिक्लेयर कर दिया स्टेटेड दैट वी मस्ट कंसिडर हाउ टू रिप्लेस द ज्वेल. हमें अभी सोचना चाहिए कि कैसा ये ज्वेल को रिप्लेस करें. दैट मीन्स वी कैनॉट फाइंड इट नाउ. So better we have to make another necklace of the same kind and return her. हमें यही सेम टाइप ऑफ नेकलेस को खरीद कर उन्हें देना है. And so they went from jeweler to jeweler looking for a necklace like the other one, consulting their memories, both sick with grief and anguish. So they went from jeweler to jeweler. वो लोग एक ज्वेलर से दूसरे ज्वेलर मीन्स ज्वेलर से ज्वेलर एक दुकान में लोग गए लुकिंग फॉर द नेकलेस ऑफ द सेम काइंड सेम तरीके के नेकलेस ढूंढते हुए. एंड कंसल्टिंग द मेमोरीज वो लोग अपने मेमोरी में याद में वो नेकलेस को कैसा था वो सोच कर दे स्टार्टेड डिस्क्राइबिंग अबाउट द नेकलेस. एक ज्वेलर के पास डिस्क्राइब करने लगा कि इस तरह उसका डिज़ाइन है सो दैट दे कुड मेक इट. And they both were sick with grief and anguish. Grief, pareshani, dukh,
एंड एंग्विश, एंग्विश मीन्स एक्सट्रीम पेन, बहुत ही हद से ज़्यादा दर्द, मन को उनको बहुत ही हद से ज़्यादा दर्द होने लगा. In the shop of Palais Royal, they found a string of diamonds which seemed to be exactly what they were looking for. In the shop of Palais Royal नाम का जगह में एक शॉप में they found a string of diamonds. डायमंड का एक माला, एक हार देखा, एक स्ट्रिंग देखा, which seemed to be exactly what they were looking for. जो लग रहा था exactly what they were looking for. जो उन लोग ढूंढ रहे थे, looking for, ढूंढना, जो चीज़ के लिए उन लोग खोज रहे थे, same kind of they could find. It was worth 40,000 franc. उसका कॉस्ट था 40,000 franc. They could have it for 36,000 और डिस्काउंट दे रहे थे दुकान वाले, एंड दे कुड हैव इट, उन लोग उसको कितने में ले सकते थे? 36,000 फ्रैंक में मिल सकता था. सो दे बेग द ज्वेलर नॉट टू सेल इट फॉर 3 days. उन लोगों ने ज्वेलर से बेग मीन्स एकदम गिड़गिड़ा कर बोले या रिक्वेस्ट किया, नॉट टू सेल इट फॉर 3 days. 3 दिन के लिए किसी और को वो बेचना नहीं. एंड दे मेड एन अरेंजमेंट, उन लोगों ने अरेंज किया दैट ही वुड टेक इट बैक फॉर 34,000 francs if the other necklace was found before the end of February. So they needed some time. बराबर. और उन लोगों ने ऐसा एक अरेंजमेंट या ऐसा एक वादा, एक एग्रीमेंट किया ज्वेलर के साथ कि 34,000 में उस नेकलेस को रिटर्न लेने, 34,000 फ्रैंक में. अगर इफ द अदर नेकलेस वाज फाउंड बिफोर द एंड ऑफ फेब्रुवरी महीने के लास्ट तक का टाइम लिया, उतने दिन के अंदर अगर वो खोया हुआ नेकलेस मिल जाएगा तो द शॉपकीपर वुड टेक इट बैक. शॉपकीपर ये जो नया नेकलेस है उसको रिटर्न ले लेगा फॉर 34 francs. देयर ऑल्सो दे आर गोइंग टू फेस 2 francs लॉस. बराबर. 36 फ्रैंक में वो लोग लेने का एग्री किया, एंड दे वांटेड 3 days टू पे द मनी. पैसा पे करने के लिए 3 days लिया. एंड वन मोर एग्रीमेंट दे डिड दैट अगर फेब्रुवरी लास्ट के पहले इफ दे कुड फाइंड द ओल्ड वन, अगर उन लोगों को पुराना चीज़ मिल गया, देन द शॉपकीपर शुड टेक द न्यू वन इन 34 francs. Loisel had 18,000 francs which his father had left him. Loisel के पास 18,000 franc था which his father had left him, जो उसके फादर ने उसके लिए छोड़ दिया था. He would borrow the rest. बाकी बचा हुआ he would borrow, उधारी लेना था. And he did borrow. ज़रूर वो borrow ही किया because there was no other way. He gave notes. बोरो करने के लिए किसी को नोट लिख के देना पड़ा. Made ruinous agreements. बहुत ही ruinous मतलब पूरे खराब, डिस्ट्रक्टिव, पूरे तबाह कर सकते वैसा बहुत ही खराब एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया. Dealt with every type of money lender. Dealt with every type of money lender. हर किस्म के मनी लेंडर मीन्स पैसा उधार देने का काम करने वाले लोगों के साथ डीलिंग किया, हर किस्म की डीलिंग किया. Then he went to get the new necklace, and at last he collected money from different sources, like different kinds of money lenders, and he went to purchase the new necklace. नया necklace purchase करने के लिए गया, and lay down all the jewelers counter. Lay down on the jewelers counter 36,000 francs. वो ज्वेलर के काउंटर में जाकर he lay down, रख दिया, डाल दिया all the 36,000 francs. When Madame Loisel took the necklace back, Madame Forestier said coldly. जब मैडम लॉयसल took the necklace back, नेकलेस को वापस ले गया, मैडम फॉरेस्टर said coldly, एकदम coldly ठंडे आवाज से बोला, You should have returned it sooner. आप इसे थोड़ा जल्दी दे देना चाहिए था. I might have needed it. मुझे इसकी ज़रूरत थी. From then on, Madame Loisel
knew the horrible life of very poor. उस दिन से मैडम लॉयसल ने जाना हाउ द हॉरिबल लाइफ ऑफ अ वेरी पुअर लाइफ ऑफ द वेरी पुअर पीपल इज, किस तरह हॉरिबल है, किस तरह खतरनाक है गरीब लोगों की लाइफ. द फर्स्ट टाइम शी स्टार्टेड नोइंग, उन्हें पता चल गया गरीब का जिंदगी क्या होता है. बट शी प्लेड हर पार्ट हीरोइकली, लेकिन उसने अपना पार्ट, अपना भूमिका हीरोइकली यानी हीरोइज्म के साथ एक हीरोइन की तरह वो पूरे किए. मीन्स ये पुअर लाइफ भी वो बहुत ही हिम्मत से जिया. द ड्रेडफुल डेप्ट मस्ट बी पेड, ये खतरनाक, ये बहुत ही डरावना डेप्ट. व्हाट डू मीन बाय डेप्ट? डेप्ट मीन्स उधार, ये कर्ज, ये कर्जा भी क्या करना है, पेड ऑफ करना है, वापस देना है. शी वुड पे इट, उसे वो पे करना है. दे डिसमिस्ड दे मेड, मेड मीन्स नौकरानी, घर में जो नौकरानी थी उनको निकाल दिया काम में से, क्योंकि उसको देने के लिए अभी पैसा नहीं है. दे चेंज देयर लॉजिंग्स, उन लोगों ने उनके रहने का जगह चेंज किया. दे रेंडर्ड अ गैरेट अंडर द रूफ, उन लोगों ने क्या लिया, एक गैरेट, एक एटिक, घर के ऊपर जो छोटा सा हिस्सा बनाया रहता है, छत के ऊपर छोटा सा एक प्लेस होता है जो ओल्ड चीज़ें वगैरह डालने के लिए नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, जिसको कंप्लीट हाइट नहीं होता, एक रूम जैसा नहीं बता सकते हैं. तो वैसा एक ऊपर हिस्सा अबव द रूफ, छत के ऊपर छोटा सा एक प्लेस बनाया हुआ रहता है, उसको भी एक सेपरेट छत है. वहाँ पर जो एरिया है वो एरिया में पुरानी चीज़ें वगैरह डालने के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं. उसको क्या कहते हैं, गैरेट, अदरवाइज एटिक. गैरेट और एटिक कहते हैं. तो एक रूफ के नीचे एक एटिक को, एक गैरेट को लोगों ने रेंट में लिया और दे स्टार्टेड लिविंग देयर. शी केम टू नो द ड्रेजरी ऑफ हाउस वर्क, वो समझ में आया उसे, या शी केम टू नो, उसको पता चल गया व्हाट इज द ड्रेजरी ऑफ हाउस वर्क. घर का काम, घरेलू काम कितना हार्ड वर्क होता है. ड्रेजरी मीन्स हार्ड मैनुअल वर्क, कितना मेहनत होता है घर का काम करने में. द ऑडियस लेबर्स ऑफ द किचन, द ऑडियस लेबर्स ऑफ द किचन, ऑडियस मीन्स हेटेड, जो पसंद नहीं करने वाला किचन के अंदर का काम. शी केम टू नो. शी वॉश द डिशेस, शी स्टार्टेड वॉशिंग डिशेस, बर्तन मांजने लगी या धोने लगी. द डर्टी लिनन, कपड़े गंदे हो गया हुआ कपड़े धोने लगी. शी कैरीड द गार्बेज डाउन टू द स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग, रोज सुबह अपना घर का कचरा गार्बेज स्ट्रीट में नीचे रास्ते में ले जाने लगी. एंड कैरीड अप द वाटर, पानी उठाकर लाने लगी. स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच अ ब्रेथ, और हर एक थोड़े थोड़े चलकर रुक जाने लगी और लंबे लंबे सांस लेने लगी. वाइल कैरिंग, वाइल फेचिंग वाटर, पानी उठाते लेते आते आते बीच बीच में रुकने लगी टू टेक ब्रीथ. एंड ड्रेस्ड लाइक अ कॉमनर, एक सादा व्यक्ति के जैसा ड्रेसिंग करने लगी. विच ऑल दिस शी वुड नॉट, शी शुड नॉट, मीन्स शी डिड नॉट डू, ये सभी चीज़ वो कभी करती नहीं थी. बराबर, क्योंकि शी हैड अ मेड टू डू ऑल दिस वर्क, ये सभी काम करने के लिए उसके पास एक मेड थी, एक नौकरानी थी. नाउ शी स्टार्टेड डूइंग ऑल दीज थिंग्स, ऑल द काइंड ऑफ हाउस होल्ड वर्क, एंड स्टार्टेड वेयरिंग या स्टार्टेड ड्रेसिंग लाइक अ कॉमनर, एक कॉमन व्यक्ति के जैसा कपड़े भी पहनने लगी. शी हैड टू बार्गेन एट द सो मीन्स एक एक छोटे छोटे पेनी. फ्रांस के जो कॉइन है मेन, जो मेन करेंसी है दैट इज़ फ्रैंक. फ्रैंक में से एकदम लोवेस्ट कॉइन दैट इज़ कॉल्ड 100. जैसा इंडिया में हम बोलते हैं ना आना, एक एक पाई पाई के लिए वो लड़ने लगी.
और लोगों से इंसल्ट सुनने लगी, दुकान वालों के साथ या ग्रीन ग्रोसर भाजी वाले सब उनके साथ सब एक एक पेनी के लिए एक एक सौ के लिए वो जब लड़ने लगी तो दे स्टार्टेड इंसल्टिंग हर. ईच मंथ दे हैड टू पे सम लोन. हर एक महीने में उनको कुछ लोन पे करना था. रिन्यू अदर्स, कुछ लोन को रिन्यू करना था, यानी पैसा इकट्ठा करके भरने के बाद उसको रिन्यू करना था कम अमाउंट के लिए, टू गेट मोर टाइम. रिन्यू करे ताकि उनको उसको क्लियर करने के लिए ज़्यादा टाइम मिले. हर हस्बैंड वर्कड एक्स्ट्रा एवरी इवनिंग डूइंग अकाउंट्स फॉर अ ट्रेड्समैन. और उसका हस्बैंड जो रेगुलर का काम के अलावा एवरी इवनिंग आफ्टर कंप्लीटिंग इज रेगुलर वर्क, रोज जो जाता है वो काम करने के बाद एवरी इवनिंग ही हैड टू वर्क एक्स्ट्रा. वो एक्स्ट्रा काम करने लगा. डूइंग अकाउंट्स फॉर अ ट्रेड्समैन, एक बिजनेसमैन के यहाँ अकाउंट लिखने लगा. एंड ऑफन लेट इन टू द नाइट, और हमेशा लेट आने लगा रात को. ही सैट कॉपिंग द मैन्युस्क्रिप्ट at 5 sous a page. और घर पे आने के बाद ही सैट कॉपिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट. मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स द स्क्रिप्ट रिटन बाय हैंड, हाथ से किसी का लिखा हुआ चीज़ को कॉपी करने का काम करने लगा. एट 5 sous a page, एक पेज लिखने पर 500 मिलता था. मीन्स 5 पेनी जैसा, 5 पैसे जैसा इंडिया में कहेंगे तो 500 के लिए वो मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी करने लगा. आफ्टर रिटर्निंग होम एट नाइट. एंड दिस लाइफ लास्टेड 10 years. इस तरह उनका लाइफ 10 years बीता. At the end of 10 years, they had paid off everything, even the interest. 10 साल के मेहनत से they had paid off everything. सब कुछ पे करके ख़त्म किया, paid off. Even the interest, interest तक, ब्याज तक. मैडम लॉयसल looked old now. अभी मैडम लॉयसल बहुत ही बूढ़ी दिखने लगी क्योंकि मेहनत, दर्द, तकलीफ उसकी वजह से. Often she brooded over the past. Brooded means think hardly. हमेशा वो जो गुजरे हुए कल के बारे में याद करती. ब्रूडेड, ब्रूडेड मीन्स बहुत ही सैडली एंड डीपली थिंकिंग. What would have happened if she had not lost that necklace? क्या होता अगर she had not lost that necklace? वो नेकलेस नहीं खोई होती तो क्या होता लाइफ में? How strange life is, how fickle. कैसा अजीब है लाइफ. Strange means अजीब. How fickle, fickle means changing all the time without any constant way. कोई कॉन्स्टेंट्स नहीं है, मतलब हमेशा चेंज हो जाता है. चेंजेबल, एनी टाइम इट कैन चेंज. कभी भी वो रूप बदलता है. कितने फ्रीक्वेंटली रूप बदलने वाला है लाइफ. फिकल मीन्स फ्रीक्वेंटली अपना रूप बदलना. हाउ लिटिल इज नीडेड फॉर वन टू बी रूइंड और सेव्ड. एक व्यक्ति को रूइन होना तबाह होना, और सेव्ड यानी लाइफ को बचाना. लाइफ को तबाह करने में और लाइफ को बचाने में बस कितने लिटिल टाइम इनफ है. छोटी सी एक बात बस हो गया, लाइफ बना भी सकता है, लाइफ को बिगाड़ भी सकता है. शी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट. One Sunday, as she was walking in the Champs Elysees, एक संडे के दिन she was walking in the Champs Elysees, एक जगह है Champs Elysees, वो जगह से जो चल रही थी. Suddenly she saw Madame Forestier. अचानक उन्होंने मैडम लॉयस्चल ने देखा. किसको? मैडम फॉरेस्टियर. स्टिल यंग, अभी भी वो यंग दिख रही है मैडम फॉरेस्टियर. स्टिल ब्यूटीफुल, अभी भी सुंदर है. स्टिल चार्मिंग, चार्मिंग मीन्स अट्रैक्टिव, अभी भी अट्रैक्टिव दिख रही है. मैडम लॉयस्टल फेल्ट इमोशनल, उसको देखे बहुत ही इमोशनल हो गई, बहुत ही फीलिंगफुल हो गई. शुड शी स्पीक टू हर, सोचने लगी कि वो उससे बात करेगी. Yes, of course. And now that she had paid, she would tell her all. ज़रूर वो बात करेगी. पहले she used to avoid मैडम फॉरेस्टर. स्टार्टिंग में तो मैडम फॉरेस्टर से अवॉइड किया, उसको अवॉइड करती थी. बिकॉज आफ्टर मीटिंग हर she would feel what it is called regret. उन्हें रिग्रेट फील होता था, ये इतने अमीर में गरीब ऐसा. लेकिन नाउ there is no extra feeling, there is no regret that she, while speaking to her,
उसे बात करने के टाइम पे कोई रिग्रेट फील नहीं होगा, बिकॉज शी हैड पेड ऑल द अमाउंट, जो कुछ भी उसको पे करना था, मीन्स शी हैड टू रिटर्न हर necklace and she had already paid off. She had already given her the necklace. उन्होंने necklace return दे दिया था, तो why should worry or why should feel shame to talk to her? She went up to her. वो सीधे मैडम फॉरेस्टर के पास गए. गुड मॉर्निंग जेने, मतलब ऐसे प्यार से बुलाते हैं एक दूसरे को, तो लोग जो पहचान वाले पेट नेम से बुलाते हैं. गुड मॉर्निंग जेने. द अदर एस्टोनिश्ड, तो मैडम लॉयसल जाकर उनको बुलाया, गुड मॉर्निंग किया, तो दूसरे एस्टोनिश्ड टू बी एड्रेस्ड टू फेमिलियरली बाय दिस कॉमन वुमन. शी एस्टोनिश्ड, कौन? मैडम फॉरेस्टर. एस्टोनिश्ड मीन्स ग्रेटली सरप्राइज्ड. समझ में नहीं आया कि कौन ये व्यक्ति है जो एड्रेस कर रहा है, जो पुकार रहा है सो फेमिलियरली, बहुत ही जाने पहचाने से, by this common woman. ये कॉमन व्यक्ति, ये कॉमन लेडी, who she is, she did not recognize her. उसे पहचाने नहीं, because the look of Madam Loisel has already changed, almost changed. मैडम लॉयसल का जो पहला का लुक है वो पूरा चेंज हो गया था. That's why Madam Forrester could not recognize her. उसे पहचानी नहीं. She stammered. Stammered means रुक रुक के बोलना, means बात कोई हेसिटेशंस होगा, कोई डाउट होगा तो हम क्लियरली बात नहीं कर पाते हैं. रुक रुक कर पूछी, बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक. मुझे ये नहीं समझ रहा है. यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक. मैडम आपने शायद कोई गलती किया है, आप किसी और समझकर मुझसे बात कर रहे हैं. नो, आई एम मिटिल्ड लॉयसल. तो अपना पहचान बताई. आई एम मिटिल्ड लॉयसल. Her friend uttered a cry. जोर का चीखी. Oh my poor Matilde, how you have changed. Oh मेरी प्यारी, मेरी poor, ए मेरी बेचारी लॉयसल, how you have changed. कैसे तुम इतने बदल गई. Yes, I have had some hard times. हाँ, मेरे लाइफ में कुछ hard times, कुछ मुश्किलें आई. Since I last saw you, आपसे लास्ट टाइम मिलने के बाद मेरा लाइफ बदल गई. And my miseries. Miseries means my hard times. And all because of you. ये सब कुछ तुम्हारी वजह से. Me? How can that be? मेरे वजह से? How can that be? कैसा हो सकता है वो? You remember that diamond necklace that you lent me to wear to the ministry party? Do you remember that diamond necklace? तुम याद कर रहे हो? याद करो वो diamond necklace जो तुमने मुझे उधार लिया था, उधार दिया था. लेंट मी मीन्स उधार देना. बोरो मीन्स उधार लेना. लेंड एंड बोरो दे आर ऑपोजिट वर्ड्स. बोरो मीन्स उधार लेना, लेंड मीन्स उधार देना. LEND दैट इज द प्रेजेंट टेंस, LENT इज द पास्ट टेंस. जो तुमने मुझे उधार दिया था टू वेयर टू द मिनिस्ट्री पार्टी, मिनिस्ट्री पार्टी में पहनने के लिए. सो फॉरेस्टर रिप्लाइड, यस वेल, हाँ ठीक है. तो वेल आई लॉस्ट इट, वो मैं खो गई थी, मुझसे वो खो गया. व्हाट यू मीन यू ब्रॉट इट बैक? क्या मतलब है, तुमने तो रिटर्न दिया था. आई ब्रॉट यू बैक अनदर एक्जैक्टली लाइक इट. मैंने तुमको रिटर्न दिया था ज़रूर, बट इट वॉज अनदर वन. इट वॉज नॉट द सेम वन, इट वॉज द अनदर वन एक्जैक्टली लुकिंग सेम. सेम दिखने वाला दूसरा मैंने दिया था. एंड इट हैड टेकन 10 years टू पे फॉर इट. और मुझे 10 साल लगा वो पूरे पैसे पे करने के लिए. आपको तो मैंने दिया पर चारों तरफ से उधार लेकर, बट इट टुक 10 years फॉर मी. मेरे लिए वो 10 साल लगा टू पेड इट ऑफ, पूरे पैसे पे ऑफ करने. इट वॉजंट ईजी फॉर अस. हमारे लिए इतना आसान नहीं था. वी हैड वेरी लिटिल, हमारे पास बहुत ही कम था. बट एट लास्ट इट इज़ ओवर. आखिर में वो पूरा पेड ऑफ हो गया. एंड आई एम वेरी ग्लैड. और अभी मैं बहुत ही खुश हूँ. मैडम फॉरेस्टर वॉज स्टन्ड. ये सुनकर शी बिकेम स्टन्ड. स्टन्ड मीन्स सरप्राइज्ड या फिर शॉक्ड. वो बहुत ही शॉक्ड हो गई. यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन. तुम क्या कह रही हो? यू परचेस्ड अ डायमंड नेकलेस. तुमने एक डायमंड नेकलेस खरीदा टू रिप्लेस माइन, मेरे नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए, उसके बदले में देने के लिए.
Yes, you didn't notice then? तुमने ध्यान नहीं दिया? They were very similar. उन लोग एकदम डिक्टो सेम टू था. And she smiled with proud and innocent pleasure. ये बोलते हुए मैडम लॉयसल स्माइल करने लगा और प्राउड मीन्स गर्व से स्माइल किया विथ इनोसेंट लुक, इनोसेंट प्लेशर, एकदम इनोसेंट मासूम प्लेशर मीन्स हैप्पीनेस से. मैडम फॉरेस्टर डीपली मूव्ड, मैडम फॉरेस्टर बहुत ही डीपली मूव्ड मीन्स उसको बहुत फील हुआ, डीपली मन के गहराई से उसको फील हुआ. टू बोथ हर हैंड्स, मैडम लॉयसल के दोनों हाथ को अपने हाथ में ली और बोली, ओ माई पुअर मिटिल्ड, माइन वॉज एन इमिटेशन. इमिटेशन मीन्स नकली, ओरिजिनल नहीं था. ए मेरे पुअर बेचारे मिटिल्ड, मेरा एक नकली, एक इमिटेशन, क्या बोलते हैं जो नकली मेटल में, दूसरे मेटल में पॉलिश किया हुआ या कलर चढ़ाया हुआ, वैसा एक था. इट वॉज एन इमिटेशन. इट वॉज वर्थ 500 francs एट द मोस्ट. एट मोस्ट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा उसका कॉस्ट होगा एक 500 franc. और फॉर दैट यू हैड स्पेंट यू हैव ड्रू इन योर होल 10 years. तुमने तुम्हारे 10 साल पूरा बर्बाद किया उसके लिए. माइंड वॉज एन इमिटेशन एंड यू रिटर्नड मी अ रियल वन. सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट मैडम लॉयसल मस्ट हैव फेल्ट. ये सुनकर मैडम लॉयसल को कैसा फील हुआ होगा, यू कैन अंडरस्टैंड दैट. सो द लेसन वी स्टडी फ्रॉम दिस चैप्टर, या ये स्टोरी में से जो लेसन हमें सीखने को मिलता है, दैट नॉट टू बी ग्रीडी, या नॉट मीन्स जो हमें मिलता है यू शुड बी कंटेंट ऑफ व्हाट यू हैव. जो आपके पास है उसे यू शुड बी सेटिस्फाइड, नॉट बी ग्रीडी. और जो हमारे बस में नहीं है उसको पाने का या लालच नहीं होना चाहिए. सो इट वॉज अ स्टोरी टेकन फ्रॉम, adapted from The Necklace by, written by Guy de Maupassant. I hope, my children, you must have understood the story well. Since it was a story, heart-touching story, you must have enjoyed it also. But your duty is to understand it well and try to answer the questions, answer the workshop given in the textbook, and try to answer maximum questions related to the lesson. You should make your own sentences and improve your language, improve your vocabulary, and good luck. Bye.